for Dr. Lohiya. Do not miss even a single beat of his because every mentioning, every talk of his is very enlightening. Keep a pen and paper, or probably you can also take down your notes maybe on the mobile. It will be really helpful, maybe some keynotes which will really help in the future. Trust me, it's worth it. And Dr. Lohiya, like I said, he's an MD practicing allopath. He had a fantastic career. He will introduce himself also. But how much ever little that I know I picked up from his lectures, I'm just repeating that. He's quite famous outside, globally, nationally, and being a practitioner of MBBS, being an MBBS and MD doctor, what happens is that we always look up to an allopath in a very high demand kind of a thing, like for anything and everything we are there. But Dr. Lohiya has also touched upon acupuncture coming into the domain of holistic medicine, and he moved out from there. So I think we have a win-win situation here. We already have a doctor, and we also have a fantastic doctor who is also a teacher. So I think that's a big win for us. So not going furthermore on my talk, I'm giving the entire dais and the entire session. Let the leader speak for himself. Thank you so much. Welcome, Dr. Lohiya, sir. Thank you. My friend Dr. B. Kumar, Madam Moose, and all people who are involved in arranging this Congress, and respected audience. I am Professor Dr. P.B. Lohiya, Chairman of Indian Academy of Acupuncture Science. Acupuncture is supposed to be a part of traditional Chinese medicine, TCM. But I have claimed in my live interview in China that acupuncture, the root of acupuncture are in India. It is Indian in origin. In 1995, there was an international conference at Beijing, and the topic was how to live 100 years old with the help of acupuncture and acupressure. I was awarded as the best speaker in the conference, and then I had a live press conference followed by radio and TV interviews. The lady who was interviewing me, she said, Professor Lohiya, we are thankful to you that you are popularizing Chinese medicine in your country. I said, sorry madam, rather I am thankful to Chinese government and Chinese people for having accepted my Indian medicine in your country. China being a communist country, it was a big daring that time. And the lady asked me so many questions, what is the proof and this and that. I won't go into detail, but we have enough proofs to prove that the roots of acupuncture were in India, and in Takshashila and Nalanda universities, acupuncture was being taught in the name of Suchi Chikitsa. But because English people ruled our country, they dominated, they spoiled our culture, our literature, our everything. अंग्रेज़ों ने हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो ये नहीं कि वो कोहिनूर डायमंड लेके गए. अगर अंग्रेज़ कोहिनूर नहीं ले जाते तो कोहिनूर अभी कोई तो भी पॉलिटिशियन के घर में छुपा हुआ रहता था. कम से कम अंग्रेज़ लोग ले गए, अंग्रेज़ों ने उनको बहुत सुरक्षा से रखा है. If we want to see Kohinoor diamond, we can go to London and we can see our Kohinoor. और ये white skinned people are guarding our Kohinoor. इसकी हमें खुशी है. अंग्रेज़ों ने हमारा, जैसा मैंने बोला कि कल्चर है, सब चीज़ें हमारी स्पॉइल की, डोमिनेट की. अंग्रेज फिजिकली इंग्लिश पीपल हैव लेफ्ट आवर कंट्री, बट प्रैक्टिकली दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ आवर हेड. अभी भी हम लोग बोलते हैं मातृभाषा का प्रचार करो, सब लीडर बोलते हैं खास करके. लेकिन उनके घर में माँ को अगर माँ बोला, आई बोला, तो आई एक जोर से थप्पड़ लगाते, व्हाट नॉनसेन्स, कॉल मी मॉम. आणि एवढा पगडा आपल्या डोक्यावर इंग्रजांचा आहे. एनिवे, सो व्हाट आई मीन टू से, we should be proud that acupuncture is Indian in origin and we should try to propagate it. Myself, मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ. I was running a big hospital, maternity and surgical. I practiced एलोपैथी for 10 years. और मेरा एलोपैथी प्रैक्टिस बहुत अच्छा था. ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं चला इसलिए छोड़ा.
सो वेर एवर आई गो, मेरे लाइव इंटरव्यू पूरे वर्ल्ड में हुए इंक्लूडिंग BBC लंदन एट लंदन, and the first question people ask me is, being an allopathic doctor, why did you leave allopathy and why you are popularizing acupuncture? कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण जो है, in allopathy we don't know the root cause of disease in at least 90% cases. At London there is Royal College of Physicians. All the members are MD medicine, allopathy वाले. They had invited me for my lectures there, London में, and there I said कि we are great ego that we are doctors of allopathy. We think that we are God or next to God. But all of you, please close your eyes, keep your hand on the heart, and honestly think कि in allopathy how many diseases you can cure. And the answer is, except bacterial infection, I repeat, except bacterial infection, we cannot cure a single entity in allopathy. बाद में वहाँ BBC लंदन के रिपोर्टर्स आए थे, वो बोले कि हाउ डिड यू डेयर टू मेक सच अ स्टेटमेंट इन द amongst एलोपैथी पीपल. मैंने कहा वी आर इंडियंस, हम अगर सही है, इफ़ वी आर राइट, सही बोलने के लिए हम किसके बाप को नहीं डरते. अगर किसको लगता है कि मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट किया है, they can go to court of law and they can file a case against me. As simple as that. When I was practicing allopathy, मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा था. अरे पानी पानी पाए. एक कॉज मैंने बोला कि एलोपैथी में 90% केसेस में हमको रूट कॉज पता नहीं है. वी आर सप्रेसिंग द सिम्टम्स. जैसे आपके लॉन में घास बड़ी है, तो जो घास हमको दिखता है, वी आर कटिंग दैट ग्रास, बट वी डोंट नो कि रूट्स कहाँ हैं. रूट्स वैसे ही है. इवन हम सर्जरी करते हैं कोई भी ट्यूमर के लिए, वी डोंट नो द कॉज ऑफ ट्यूमर. हम ट्यूमर को कट करते हैं, कुछ दिन से ट्यूमर रिकर होता है, बिकॉज वी आर नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज, वी आर डूइंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. मेजोरिटी एलोपैथी क्यों पॉपुलर है? बिकॉज ऑफ पेन किलर, स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स. Now, what is a पेन किलर? मैं जब एलोपैथी प्रैक्टिस करता था, कोई नी पेन का पेशेंट आया, वी टेक अ ब्यूटीफुल एक्सरे, वी टेल द पेशेंट कि तुम्हारे जॉइंट में लुब्रिकेंट कम है, द कार्टिलेज आर ब्रशिंग अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज कॉज ऑफ पेन. But in allopathy, we don't have any drug which can increase the lubricant, so we are giving a painkiller. Now, what is a painkiller? By giving a painkiller, we are desensitizing the brain. कि बॉडी में कहीं भी अगर पेन होता है, वो सेंसेशन जो ब्रेन के सेंसरी एरिया को जाता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं, ताकि द ब्रेन डज नॉट रिसीव द पेन इम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम हाउस इज सेट ऑन फायर, कोई बिल्डिंग को आग लगी है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ और आग को बुझाओ. हम क्या करते हैं, घर जल रहा है क्या, क्लोज योर आइज सो दैट यू डोंट सी द बर्निंग हाउस. ये गलत है. या आपके कार का साइलेंसर खराब हो गया, आवाज़ आ रही है, तो ट्रीटमेंट शुड बी साइलेंसर को रिपेयर करो, रिप्लेस करो. हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं कान में रुई डालो, पुट कॉटन इन योर ईयर सो दैट यू डोंट हियर द साउंड. तो मुझे खुद मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, पर मुझे लग रहा था कि समवेयर और द अदर आई एम चीटिंग माई पेशेंट्स. कोई पेशेंट आया, सर्वाइकल या लंबर स्लिप डिस्क, गर्दन में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, वी आर टेकिंग एक्सरे, MRI, अगेन वी आर गिविंग पेन किलर. I thought कि if some educated person asked me कि यहाँ स्लिप डिस्क है या कमर में स्लिप डिस्क है या घुटने में दर्द है, आप तो वही दवा देते हो, फिर आप एक्सरे और MRI क्यों निकालते हो? व्हाट इज द आंसर? तो मुझे मेरे पेशेंट्स वेर हैप्पी बिकॉज आई बीन गिविंग पेन किलर्स. और मैं क्या करता था, अलग अलग टाइप के पेन किलर रखता था कि घुटने के लिए काले रंग का, गर्दन के लिए पीले रंग का, कमर के लिए ग्रीन का.
But I thought that this is not correct. What we are doing is not correct. One more reason, in allopathy we are using chemicals. Chemicals are metabolized in liver and filtered in the kidney. So side effects of the drug जो होते हैं वो kidney और liver पे होते हैं. Not only on the organ, but according to acupuncture, we know that kidney supplies energy to scalp hair, ear, bones and cartilages, sex organs. तो ये सब पे side effect होता है. ये liver पे जब side effect होता है, liver is providing energy to muscles and tendons. It is also providing energy to the eyes. तो इस पे भी side effect होता है. मैं जब मेडिकल में पढ़ता था तो these all were taught us to as side effect. But मैंने पूछा था कि साइड इफेक्ट क्यों होता है. फॉर एग्जांपल, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स या कीमोथेरेपी लेने से सर के बाल झड़ते हैं, डेफनेस आता है. तो व्हेन आई वाज इन लर्निंग मेडिकल एमबीबीएस जब पढ़ रहा था तो प्रोफेसर ने जब बोला ये साइड इफेक्ट है तो मैंने सर को पूछा कि साइड इफेक्ट क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ साइड इफेक्ट. ही सेड नॉनसेंस, दैट इज गिवन इन द बुक. मैंने बोला सर, आई आस्क्ड पोलाइटली कि सर बुक में दिया है इसलिए बाल नहीं झड़ते हैं, बाल झड़ते ये ऑब्जर्वेशन है इसलिए बुक में दिया है, एंड आई वांट टू नो द रीज़न. सर को इतना गुस्सा है कि बोले नॉनसेंस, गेट आउट. ही डिड नॉट अलाउ मी टू अटेंड हिज क्लास एनी मोर. सो एलोपैथी के ड्रग्स के साइड इफेक्ट है, कई साइड इफेक्ट है, हॉरिबल साइड इफेक्ट है. बुक में हम देते हैं दिस ड्रग इज़ वेरी वेरी सेफ, डेथ रेट इज़ 0.001%. लेकिन जिसके नसीब में वो है रिएक्शन वो तो 100% मरेगा ना, वो 0.001% नहीं मरेगा. दिस वॉज अनदर रीज़न. एंड वन मोर रीज़न फॉर लिविंग एलोपैथी एंड कमिंग टू एक्यूपंक्चर इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल. एंड आवर कंट्री, वी हैव ईगो कि हम ऐसे हैं इकोनॉमिकली, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. पूना का जितना पॉपुलेशन है उतने लोग बॉम्बे में फुटपाथ पे सोते हैं. दैट इज हार्ड रियलिटी. पूना का जितना पॉपुलेशन है उतने लोग बॉम्बे में फुटपाथ पे सोते हैं. तो आई थॉट इफ ड्रगलेस थेरेपी लाइक एक्यूपंक्चर इज पॉपुलराइज्ड इन आवर कंट्री, दैट विल हेल्प द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द कंट्री. चाइना में जब मैं रेगुलर जाता हूँ कि आई एम प्रोफेसर देयर, पहली बार जब गया, चाइना वॉज अ वेरी पुअर कंट्री. टू बी ऑनेस्ट, चाइना जब स्वतंत्र हुआ 1949, चाइना वॉज पुअरर देन इंडिया दैट टाइम. चाइना के इकोनॉमी स्ट्रांग हुई क्योंकि माओ ज़ेडुंग gave patronage to acupuncture. He said that acupuncture is Chinese treasure, and because it is a drugless therapy, if acupuncture and acupressure are popularized, that would save a lot of money being spent on importing allopathic drugs. So this thought I had in mind कि हम अगर इसको ड्रगलेस थेरेपी को, नॉट ओनली एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर है, योगा है, नेचुरोपैथी है, रेकी है, ये जो सभी सिस्टम्स है अपने सिस्टम्स विच आर ड्रगलेस, इनको अगर हम पॉपुलराइज करते हैं तो द मनी विच वी आर स्पेंडिंग ऑन एलोपैथिक ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो एक खर्चा कम हो जाएगा. एंड दिस मनी कुड बी स्पेंट ऑन रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन विच आर आवर बेसिक नीड्स ऑफ आवर कंट्री. माओ ज़ेडुंग ने यही सोचा, इसलिए चाइना के इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है इन ड्रगलेस थेरेपी का, इकोनॉमी आगे आने के लिए. सो आई हैड द सेम थॉट इन माई माइंड कि हम पॉपुलर करेंगे तो हमारे कॉमन मैन का, बड़े लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, वो तो दे कैन गो टू कनाडा, यूएस, लंदन, कहीं भी इलाज के लिए. वी हैव टू थिंक ऑफ कॉमन मैन, कॉमन इंडियन मैन. वो अगर उसका पैसा बचाता है तो रोटी, कपड़ा, मकान पे खर्च कर सकता है. सो मेनी रीजंस ऑफ फॉर एक्सेप्टिंग this acupuncture. Now coming to acupuncture, many people think that acupuncture is useful for only pain and paralysis, but that is not true. Acupuncture is useful in almost all disorders, whether acute abuses or chronic disorder. So don't be under a wrong impression कि we have to wait कि उसका घुटना कब दुखेगा, उसको पैरालिसिस कब होगा. We can treat almost everything.
और ये बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर ये मैं बहुत दावे से बोल सकता हूँ कि व्हेन आई कंपेयर एलोपैथी एंड एक्यूपंक्चर इज मच मोर लॉजिकल. Many people think that there is no research in acupuncture. Allopathy is modern medicine. एलोपैथी पे जितना रिसर्च हुआ है उससे ज़्यादा रिसर्च एक्यूपंक्चर पे चाइना में हुआ है. एवरीथिंग इज प्रूव्ड और हर एक चीज़ को हमारे पास आंसर है. फॉर एग्जांपल मैं जब MBBS पढ़ता था मेडिकल कॉलेज, इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी लंग के टीबी में देर इज इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर कि पेशेंट को शाम को बुखार आता है. तो मैंने टीचर को पूछा था कि सर व्हाई देर इज ओनली इवनिंग राइज टेम्परेचर, व्हाई नॉट इन मॉर्निंग. अगेन ही सेड नॉनसेंस, इट इज गिवन इन द बुक. मैंने पोलाइटली बोला सर आई डोंट थिंक दैट द ट्यूबरकुलर बेसिली आर रीडिंग आवर बुक ऑफ मेडिसिन एंड अटैकिंग द पेशेंट ओनली इन इवनिंग. नाउ इन एक्यूपंक्चर वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज इन डिजीज. इन डिजीज का मतलब क्या, जो बीमारियां एक्सेस यांग यानी एक्सेस पैथोजन की वजह से होती है, एक्सेस बैक्टीरिया, एक्सेस वायरस, दे आर कॉल्ड यांग डिसऑर्डर्स. एंड दोज डिसऑर्डर्स विच आर ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी, कि आपकी इम्यूनिटी कम है इसलिए बैक्टीरिया ने अटैक किया है, दे आर कॉल्ड इन डिसऑर्डर्स. ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट ड्यू टू बैक्टीरिया. ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट ड्यू टू बैक्टीरिया. एक घर में 10 लोग सोते हैं, एक को टीबी होता है, 9 को नहीं होता है. अगर उस घर में टीबी के बैक्टीरिया तो बाकी 9 को क्यों नहीं हुआ? तो सिंपल आंसर इज जिसकी इम्यूनिटी लो है, जिसकी प्रतिकार शक्ति लो है, उस पर बैक्टीरिया ने अटैक किया. एंड इन एक्यूपंक्चर दैट इज कॉल्ड इन डिसऑर्डर. इवनिंग इज इन, रिमेंबर इवनिंग इज इन. इसलिए शाम को बुखार आता है. बुखार क्यों आता है? दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन. इन कम होने से यांग बढ़ता है. यांग इज हॉट, इसलिए शाम को बुखार आता है. और रात को ठंडा पसीना आता है. ठंडा और कोल्ड इज इन. सो वी कैन, बोलने का मतलब क्या है कि वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. अब सिंपल चीज़ है कि अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ, लीवर को इन्फेक्शन हुआ तो आंखें पीली होती है, वी कॉल इट जॉन्डिस. एलोपैथी में इतना ही पता है हमको कि लीवर का इन्फेक्शन हुआ तो आंखें पीली होती है. लेकिन अगेन इफ़ यू आस्क कि आंखें पीली क्यों होती, कान क्यों पीला नहीं होता, उसको आंसर वही है कि इट इज़ गिवन इन द बुक. इन एक्यूपंक्चर वी नो दैट लीवर सप्लाइज एनर्जी टू द आइज. इसलिए लीवर का जब भी इन्फेक्शन होता है आंखें पीली होती है. या आपको गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है? आपके लीवर में हीट बढ़ गई कि आपको गुस्सा आता है. और हीट इज रेड, इसलिए आंखें लाल होती है. आंखें क्यों लाल होती? क्योंकि वो लीवर से रिलेटेड है. कोई आदमी ज़्यादा शराब पीता है, आंखें लाल हो जाती है. आंखें लाल क्यों होती है? क्योंकि लीवर में हीट बढ़ गई. लीवर इज रिलेटेड टू आइज, हीट इज रेड, आंखें लाल होती हैं. कहने का मतलब मैंने जो अभी स्टेटमेंट किया कि एक्यूपंक्चर इज मच मोर लॉजिकल. मेजॉरिटी लोगों को लगता है ये तो क्या है, ऐसा ही ट्रेडिशनल है, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं. ऐसा नहीं है. रादर वी हैव एक्सप्लेनेशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड अपार्ट नॉट ओनली पेन एंड पैरालिसिस, वी कैन ट्राई टू ट्रीट ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. माय ऑन्ट at the age of 70 years, she collapsed. All of a sudden, she became unconscious. She was taken to the local medical college at Ambezogai. Brain का MRI किया. The report was acute cerebral atrophy. का मतलब एकाएक ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है. वहाँ का जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन था मेडिकल कॉलेज का, he was like a family member to us. He clearly told that we will not admit the patient because she is practically dead. So take her home, call all your relatives. That day I was at Delhi. तो मुझे मेरे अंकल का फ़ोन आया कि अरे come on immediately, your aunt is practically gone. Tomorrow there is funeral. I took the next flight from Delhi to Aurangabad, then took my car, went there. All relatives had gathered. She was unconscious. आखिरी सांसें चल रही थी. All relatives had gathered. I thought it is a challenge to acupuncture, and my knowledge of acupuncture, I should try my best. क्योंकि एलोपैथी ने घुटने टेक दिए थे.
They had refused even to admit the patient. I examined her according to acupuncture. My diagnosis was phlegm confusing the heart orifice. Phlegm confusing the heart orifice. Accordingly, I treated this case. Next day, she was semi-conscious. After 2 days, she was 100% conscious. And I am very happy to tell you that I could save this patient. यहाँ सवाल डॉक्टर लोहिया का नहीं, सवाल एक्यूपंक्चर का है कि एक्यूपंक्चर कैन डू इट इफ द एक्यूपंक्चरिस्ट हैज प्रॉपर नॉलेज ऑफ डायग्नोसिस. एक्यूपंक्चर का डायग्नोसिस एलोपैथी डायग्नोसिस से अलग रहता है. एक्चुअली एलोपैथी में हम जिसको डायग्नोसिस कहते हैं वो डायग्नोसिस है ही नहीं. वी गिव अ ब्यूटीफुल नेम टू द कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट को लिखने को प्रॉब्लम है, एलोपैथी वी डोंट नो कि व्हाट इज द कॉज. हम लिखते हैं डायग्नोसिस राइटर्स क्रैम्प्स, और पेशेंट इतना खुश होता है, अरे क्या डॉक्टर हुसैन है डायग्नोसिस किया है. अरे ये क्या डायग्नोसिस है क्या. या कोई पेशेंट को नींद में काफ मसल में ऐसा ऐसा होता है, पेशेंट बोलता है कि सर नींद नहीं आती, रात को पाँव पटकना पड़ता है. वी पुट डायग्नोसिस एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, and again patient is very happy. This is not diagnosis. या कोई पेशेंट को बार बार टट्टी को जाना पड़ता है, पेट में अचानक मरोड़ आता है, भागना पड़ता है. वी राइट द डायग्नोसिस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. अब इसका क्या साइंटिफिक प्रूफ है कि बाउल इज गेटिंग इरिटेटेड. या अभी कोरोना के बाद, इन कोरोना स्टेरॉइड का यूज़ बहुत हुआ ज़्यादा, तो स्टेरॉइड की वजह से कई लोगों को हिप जॉइंट में जो हेड ऑफ फीमर रहता है वो खराब हो गया. We call it avascular necrosis of femur. There is no scientific proof to prove that it is avascular. Avascular का मतलब because of lack of blood supply. We don't have. लेकिन हम खुद को महान समझते हैं, हमको लगता है हमारे पास डिग्री है, हम कुछ भी बोलेंगे तो लोगों को मानना पड़ेगा, because we have a degree of allopathy. मैं एलोपैथी पे टीका करने के लिए नहीं खड़ा रहा हूँ. एलोपैथी इज ऑल्सो वंडरफुल साइंस, बट ईच साइंस हैज इट लिमिटेशंस. मैं फॉरेन में जाता हूँ, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं. इन वन कॉन्फ्रेंस पीपल हैड आस्क्ड मी व्हिच इज द बेस्ट पैथी. पैथी मीन्स मोड ऑफ ट्रीटमेंट. द एक्सपेक्टेड आंसर वॉज आइदर एलोपैथी और एक्यूपंक्चर, बिकॉज आई एम डॉक्टर ऑफ बोथ. I said neither allopathy nor acupuncture, but curopathy is the best pathy. जो पैथी पेशेंट को क्योर कर सकती है वो बेस्ट पैथी है. समझो कोई पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑपरेशन इज द ओनली रेमेडी, वी विल से सर्जरी इज द बेस्ट पैथी फॉर दैट पेशेंट. या कोई पेशेंट को XYZ हुआ है एंड नेचुरोपैथी इज बेस्ट, आई विल से नेचुरोपैथी इज बेस्ट फॉर हिम. किसको पोलियो हुआ है, एक्यूपंक्चर इज द ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आई विल से एक्यूपंक्चर इज बेस्ट फॉर हिम. सो मेरे सभी स्टूडेंट को, मेरे मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स है अभी तक, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, सबको पहले यही बोलता हूँ, डोंट हैव ईगो ऑफ एनी पैथी, बिकॉज ऑल पैथीज आर बेसिकली मेंट टू सर्व द पेशेंट्स. कोई भी पैथी पेशेंट का गलत करने के लिए नहीं है. अब गलत होता है, साइड इफेक्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन पैथी का उद्देश्य वो नहीं कि किसका हार्म करना है हमको. ऑल पैथीज बिलीव दैट पेशेंट की सेवा करना है, पेशेंट का अच्छा करना है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर दैट ईच कॉइन हैज गॉट टू साइड्स, टेल एंड हेड. Like that, each pathy, including acupuncture or allopathy, has both sides. One side is indication and other is limitation. कोई भी साइंस, कोई भी मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है कि जो 100% को अच्छा कर सकता है. देयर आर लिमिटेशंस टू ईच साइंस. सो मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा यही बोलता हूँ, और मेरे स्टूडेंट को याद है, आई टेल देम, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, रिमेंबर 2 लक्ष्मण रेखाज. रामायण क्यों हुआ, इन सिंगल सेंटेंस उसका आंसर, सीता क्रॉस्ड लक्ष्मण रेखा, रूट कॉज ऑफ रामायण. रावण की गलती नहीं है, रावण लेके गया क्योंकि इसने क्रॉस किया ना. I tell all my students that you don't cross Lakshman Rekhas when you are practicing. There are 2 Lakshman Rekhas.
वन इज लक्ष्मण रेखा ऑफ योर साइंस विच यू आर प्रैक्टिसिंग. जैसे मैं एक्यूपंक्चर कर रहा हूँ, एक्यूपंक्चर की लक्ष्मण रेखा, एलोपैथी कर रहा हूँ, उसके लिमिटेशंस. एंड सेकंड लक्ष्मण रेखा इज लक्ष्मण रेखा of the knowledge of the person who is practicing. जैसा when somebody is beginner, उसका दायरा छोटा रहेगा, जैसा उसको एक्सपीरियंस मिलेगा उसका लक्ष्मण रेखा बढ़ते जाएगी. तो ये दो को क्रॉस मत करो. और मेरे सभी स्टूडेंट वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं. पहला सेंटेंस मेरा रहता है, डोंट क्रॉस लक्ष्मण रेखा, डोंट हार्म एनी पेशेंट. मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आई डोंट प्रैक्टिस ओनली एक्यूपंक्चर और ओनली एलोपैथी, और आई बिलीव इन क्यूरोपैथी. मैंने एक पेशेंट, आपको इंटरेस्टिंग केस बोलता हूँ. एक पेशेंट मैंने शराब पी के अच्छा किया, शराब पिला के अच्छा किया. वेरी इंटरेस्टिंग केस, वन ऑफ द बेस्ट केसेस आई हैव ट्रीटेड. आई हैड वन पेशेंट हु वाज वॉकिंग लाइक दिस, ऐसा चलता था. मेरे पास आने के पहले मुंबई, पूना, मीरठ, सांगली, शोलापुर कई मेडिकल कॉलेज में गया हो. एवरीवेयर उसका ब्रेन का और स्पाइन का एमआरआई किया गया एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल. सो ही वाज लेबल्ड इन एलोपैथी एज अ साइकेट्रिक पेशेंट. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ. मैंने एक मेडिकल, हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेडिकल कॉलेज के 2 डीन बैठे थे स्टेज पे. मैंने बोला कि सर, एलोपैथी में वी डोंट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, देन व्हाई डू यू हैव साइकेट्रिक डिपार्टमेंट इन आवर मेडिकल कॉलेज. हम माइंड को ही बिलीव नहीं करते, फिर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट कहाँ से है. एंड देन आई आंसर्ड, अकॉर्डिंग टू मी, इफ वी फेल टू डायग्नोज, वी पुट द ब्लेम ऑन पेशेंट कि ये साइकेट्रिक है. बेसिकली वी हैव नॉट अंडरस्टूड कि व्हाट इज डायग्नोसिस, वी पुट द ब्लेम एंड वी कॉल हिम साइकेट्रिक. सो दिस पेशेंट जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ही वॉज लेबल्ड एज अ साइकेट्रिक पेशेंट बिकॉज ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग. वेन ही केम टू मी, ऐसा आ रहा था, जब मैंने देखा कि ऐसा ऐसा चल रहा था, आई थॉट कि इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, इसकी रीढ़ की हड्डी को मार लगा होगा, एंड इट मे बी अ केस ऑफ पैरापेरेसिस. आके बैठा, मैंने पूछा एक्सीडेंट हुआ था क्या? वो बोला हुआ था. मैंने पूछा रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था क्या, मार लगा था क्या? और नहीं, वो तो मेरा पाँव की हड्डी टूट गई थी, टिबिया, बिलो नी. इमीडिएटली आई थॉट कि इसकी एक पाँव की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, ये दोनों साइड को ऐसा कर रहा, व्हाट कैन बी द कॉज. एंड इमीडिएटली आई थॉट, मेरा स्पॉट डायग्नोसिस हुआ कि ही मस्ट बी अल्कोहल एडिक्ट. ये शराबी होगा. एक्सीडेंट होने की वजह से इसको एडमिट किया हॉस्पिटल में. नो हॉस्पिटल इज जनरस टू प्रोवाइड शराब टू द पेशेंट. इसकी शराब अचानक बंद हो गई एंड माय डायग्नोसिस वाज अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, स्पॉट डायग्नोसिस. उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शराब पीता था क्या? हिज वाइफ सेड, सवेरे से शाम तक सिर्फ शराब ही पीता था. वो तो देवी माँ ने अच्छा किया, इसकी टांग तोड़ दी तो शराब बंद हो गई. यानी मेरा कन्फर्म हो गया डायग्नोसिस. देवी माँ ने अच्छा किया कि इसकी शराब छूट गई, कन्फर्म हुआ. देने आस्ट कि कौन सी शराब पीता? बोलो मैकडोल विस्की. मैंने उसके ससुर को बोला कि बाजार से एक मैकडोल विस्की की बोतल लेके आओ. वो ससुर गुस्से में आ गया कि सर, आप बहुत बड़े डॉक्टर सोच के आप तो गरीबों का मजाक कर रहे हैं. बोला मजाक नहीं, इसको शराब पिलाना पड़ेगा, अच्छा करना है तो. एंड बिलीव मी, I started giving him one large peg morning, afternoon, evening. और रोज आधा आधा पेग कम किया उसका. पहले दिन 3 पेग, दूसरे दिन 2.5 पेग, फिर 2 पेग, फिर 1.5 पेग. एंड आई स्टार्टेड एक्यूपंक्चर फॉर डी एडिक्शन. यानी अल्कोहल फॉर ट्रीटमेंट एंड एक्यूपंक्चर फॉर डी एडिक्शन, कि दोबारा ये शराबी न हो जाए. एंड बिलीव मी, विद इन 7 days he was 100% normal. The only problem was he got addicted. Instead of alcohol, he got addicted to Dr. Lohia. उसने उसके घर वालों को बोला कि ही इज़ माई गॉड, ये मेरे गुरु है, मैं इनके चरणों में रह के इनकी सेवा करूँगा, अब घर को नहीं आऊँगा. और उसकी बीबी सर पटक पटक के रोने लगी, ये क्या हो गई.
2 महीने गया नहीं, वो मेरे साथ रहा, बहुत मुश्किल से मुझे उसका छुटकारा पड़ा। और एक इंटरेस्टिंग केस झूठोपैथी, एक पेशेंट, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी केस जो है झूठोपैथी की, कि मैंने झूठ बोल के पेशेंट को अच्छा किया। When I had started my allopathy practice, one of my relatives, she was diagnosed in Aurangabad Ambedkar Medical College as a case of cancer of stomach. The age of patient was 70 years. Our dean of medical college, who inaugurated my clinic, told me that they may come to you because they are your relatives. This lady is going to die within 3 to 4 months. It is inoperable case of cancer of stomach. You can give vitamin injections, but don't expect anything. She is going to die. मैं जब भी उसको मिलने को जाता था, उसको रोज मिलने को बहुत लोग आते थे, क्योंकि न्यूज़ स्प्रेड कि इसको कैंसर हो गया। आदमी जब हट्टा कट्टा रहता है तो कोई मिलने को नहीं आएगा आपको। आपको लगता है कि लोगों ने मिलने को आना, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तुरंत लोग मिलने को। और जितने लोग मिलने को आते हैं उससे प्रॉब्लम बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, क्योंकि हर एक आदमी आके वही पूछेगा, समझो कि इसको हार्ट अटैक आया, वो कब आया था हार्ट अटैक, कैसा लगा, डॉक्टर ने क्या बोला। द पेशेंट इज बीइंग रिमाइंडेड बाय ईच ऑफ द विजिटर्स, तो प्रॉब्लम इज एग्रेवेटेड। इसको रोज मिलने को आते थे, उसकी तबीयत बिगड़ती गई। मैं मिलने को जाता था, मैं गया कि ऐसा करते थे, मेरी नाड़ी देखना। उसको लगा कि कोई एक नया डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है, कुछ मेरा भला कर सकता है, मेरी नाड़ी देख। आई यूज टू अवॉइड, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने इतना एलोपैथी सीख के किया क्या अगर मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे पेशेंट के लिए। वन डे शी गॉट इरिटेटेड, मैं जब गया, वो बोली मैं तेरे को हमेशा बोलती हूँ मेरी नाड़ी देख, तू क्यों नहीं देखता, तुझे डर लगता है क्या कि मुझे हाथ लगाए तो तेरे को कैंसर होगा। एंड मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग था। फॉर हर सेटिस्फैक्शन मैंने उसके नाड़ी पे हाथ रखा, एंड आई हैड इनर फीलिंग कि इसको कैंसर नहीं है। आई कांट से व्हाई, बट आई हैड इनर फीलिंग कि इसको कैंसर नहीं है। देन आई asked her only one question कि आपको भूख लगती है क्या। वो बोली भूख तो अच्छी लगती है। भूख अच्छी लगती है, लेकिन खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, इसलिए मैं खाना नहीं खाती। कैंसर में भूख ही नहीं लगती, इसलिए आदमी खाना नहीं खाता। पेप्टिक अल्सर में भूख लगती है, लेकिन दर्द की वजह से खाना नहीं खाता। सो आई थॉट इट कुड बी अ केस ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड नॉट कैंसर। मैंने उसके बेटे को बोला कि मुझे लगता है कि इसको कैंसर नहीं है। ऐसा बोलते उसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देना चालू किया। उसके बेटे ने, तुम खुद को क्या समझते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर क्या बेवकूफ़ है क्या, मेडिकल कॉलेज के डीन ने बोला है, वो इतना बड़ा सर्जन है। एक्सरे रिपोर्ट में था। फिर मैंने बोला एक काम करो कि दवा का खर्चा मैं करता हूँ, लेट मी ट्राई। दवा का खर्चा मैं करता हूँ बोलने के बाद उसका मूड चेंज हो गया। बोला ओके ओके, वी मस्ट एनकरेज यंग पीपल लाइक यू। मैंने क्या किया बोलता हूँ आपको। नेक्स्ट डे आई वेंट टू द पेशेंट। मैंने कहा दादी अम्मा आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उसने पूछा क्या खबर है। मैंने बोला कि कल मैं मेडिकल कॉलेज में गया था, मैंने आपके एक्सरे देखे, आपके एक्सरे और दूसरे पेशेंट के एक्सरे एक्सचेंज हो गए थे। जिसको कैंसर था वो आदमी 15 दिन पहले ही मर गया। एक्सरे एक्सचेंज हो गए थे, वो 15 दिन पहले मर गया। आपको कैंसर नहीं है, दूसरी छोटी मोटी बीमारी है जिसका इलाज मैं दवा से कर सकता हूँ। मैंने उसको पेप्टिक अल्सर के लिए दवाइयाँ दी, कुछ खाने के रिस्ट्रिक्शन समझाए, एंड बिलीव मी शी लिव्ड फॉर 17 years आफ्टर दैट। नो, मैंने किया क्या, झूठ बोल के अच्छा किया। सो व्हाट आई वांट टू रिपीट अगेन इज, आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑफ एलोपैथी और एक्यूपंक्चर, आई एम डॉक्टर ऑफ क्यूरोपैथी। जिसको जो करना है वो करता हूँ। अब कुछ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के पेशेंट आते हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में वर्टिब्रा आगे पीछे होते हैं। ऐसे कई पेशेंट को मैं एक लात मार के अच्छा करता हूँ, लाथोपैथी। सो लाथोपैथी, झूठोपैथी, अल्कोहोलोपैथी, एनीपैथी, आई एम इन फेवर ऑफ क्यूरोपैथी। एक्यूपंक्चर का दायरा बहुत बड़ा है।
जो रूटीन कॉजेस रहते हैं, पेन एंड पैरालिसिस इज जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेरिडियन। जैसा सड़क के नीचे गटर रहता है वैसा स्किन के नीचे मेरिडियन रहता है, पाइपलाइन में से पानी बहता है, इसलिए इसमें से एनर्जी बहती है। अगर कोई गटर या पाइपलाइन ब्लॉक हो गई तो हम क्या करते हैं, म्यूनिसिपालिटी को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ से आदमी आता है, मैन होल खोलता है, वहाँ से लकड़ी डाल के हिलाता है, कचरा निकल जाता है। सो एक्यूपंक्चर पॉइंट इज नथिंग बट अ मैन होल। और अगर मेरिडियन में जो एनर्जी बह रही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जहाँ आगे एनर्जी नहीं जाती वहाँ पैरालिसिस हो सकता है, टिंगलिंग नमनेस आ सकती है, या लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट पार्ट। जैसा आँख को जाने वाला मेरिडियन ब्लॉक हो गया तो विजन का प्रॉब्लम आएगा, कान को जाने वाला ब्लॉक हो गया कान का प्रॉब्लम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जहाँ ब्लॉक है उसके पहले, प्रायर टू दैट स्पॉट, एनर्जी इकट्ठा होती है, गैदर होती है, स्टैग्नेट होती है, एंड दैट बिकम्स आशी पॉइंट और टेंडर पॉइंट। सो इन शॉर्ट, पेन एंड पैरालिसिस आर ड्यू टू ब्लॉकेजेस इन द मेरिडियंस, बट systemic disorders are due to imbalance in 5 elements. Our body is made up of 5 elements. According to Ayurveda also, it is made up of 5 elements, but remember, only name 5 element is common. The names of the elements and basically the concept of 5 element of Ayurveda is different and acupuncture is different. अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर ये 5 एलिमेंट्स में जब इम्बैलेंस होता है इट लीड्स टू सिस्टमिक डिसऑर्डर। सिस्टमिक डिसऑर्डर यानी हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, किडनी की, लीवर की, आँख की, कान की। मेरे पास हैदराबाद में एक पेशेंट था, अ लेडी 32 years old, शी वॉज ब्रॉट टू मी एज अ केस ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी। उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी, शी वॉज टोटली ब्लाइंड। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी इट इज इनक्यूरेबल। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, नर्व, ब्रेन या कोई भी सेल अगर डेड होता है तो रीजनरेट नहीं होता, हम उसको मर गया समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी हम सोचते हैं कि बेहोश है या सोया हुआ है, इसको अगर हम गुदगुदी करेंगे, कुछ चुबाएंगे तो ये उठ सकता है। उठेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी कैन ट्राई। इन दैट केस आई डिड हर पल्स डायग्नोसिस एंड टंग डायग्नोसिस, एंड अकॉर्डिंग टू माई डायग्नोसिस उसके बॉडी में मेटल एलिमेंट ज़्यादा था। मेटल ज़्यादा होने की वजह से वुड कम हो गया। नो वुड इज लिवर एंड गॉल ब्लैडर विच प्रोवाइड एनर्जी टू द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। उस केस में मैंने मेटल एलिमेंट को कम किया, वुड को एलिवेट किया, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि विद इन 10 days हर आई साइट वॉज ऑलमोस्ट नॉर्मल। अ केस जिसको हम इनक्यूरेबल समझते हैं। और एक पेशेंट हैदराबाद में था जिसका ही वॉज हैविंग टोसिस। टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आँख ऐसी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टोसिस। एलोपैथी में टोसिस को भी वी कैन ओनली ऑपरेट बट वी कैन नॉट ट्रीट। अगेन आई डिड डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू मी। इसी केस में भी मेटल वॉज एक्सेस। और वो डायग्नोसिस हुआ कैसा कि जब मैंने पेशेंट को देखा, अब एलोपैथी में हम क्या करते हैं, कोई आया घुटना दुखता है, घुटने चेक करते हैं, आँख का प्रॉब्लम आँख ही चेक करते हैं। कोई पेशेंट अगर आता है कि जिसके पाँव में कांटा चुभा इसलिए आँख लाल हो गए, आँख के डॉक्टर के पास गया, आँख का डॉक्टर 1 घंटा आँख ही चेक करता है लेकिन पाँव का कांटा देखता नहीं है। एलोपैथी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक है कि एलोपैथी में वी थिंक दैट अ पर्सन इज अ ग्रुप ऑफ स्पेयर पार्ट्स, कि स्पेयर पार्ट लेके एक आदमी बना दिया। दिस इज रॉन्ग। इन अदर सिस्टम्स लाइक एक्यूपंक्चर और आयुर्वेदा इवन, कि बॉडी इज अ सिंगल यूनिट। आपका आँख है, कान है, नाक है, जैसा मैंने बोला पाँव में कांटा चुभा आँख लाल हो गए। वी कैन डिवाइड द बॉडी इनटू स्पेयर पार्ट्स, जैसा हम एलोपैथी में करते हैं। उस पेशेंट को पाँव पे एक्जिमा था। एक्जिमा इज जनरली एक्सेस मेटल। एक्जिमा था पाँव पे, टोसिस था, एक्सेस मेटल ओवर एक्टिंग ऑन वुड। वुड इज लिवर एंड गॉल ब्लैडर which supply energy to muscles, tendons and eyes, and ptosis is related to the eyes. यहाँ के जो मसल्स है जो इसको एलिवेट करते हैं उसका प्रॉब्लम है। मैंने लंग, मेरा एक टेक्निक है कि लंग 5 से ब्लड निकालने का और गॉल ब्लैडर 30 में इंजेक्ट करने का।
लंग 5 इज अ सन पॉइंट ऑफ लंग, मेटल कम करने के लिए यहाँ से 3 to 5 ml ब्लड निकालने का, गॉल ब्लैडर 30 विच इज वुड पॉइंट, उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करने का, और उससे बैलेंस होता है। इस पेशेंट को एक्यूपंक्चर किया ही नहीं मैंने, उसको अल्टरनेट डे ऐसे 3 इंजेक्शन दिए, यहाँ से ब्लड निकाल इधर डालना। तीसरे दिन जब वो आया था उसकी आंख ऊपर थी और पाँव का एक्जिमा गायब था। दिस ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। एक दुबई का पेशेंट था, कितनी देर कंटिन्यू करूँ? 5 मिनट, ठीक। एक दुबई का पेशेंट था, उसकी एक आंख एकदम लाल, माइग्रेन, पेशेंट वॉज रेस्टलेस। From Dubai, patient was shifted to LV Prasad Hospital, Hyderabad, which is supposed to be best for ophthalmology in all over Asia. उसके आँख में प्रेशर, जिसको हम IOP कहते हैं, IOP was 59.6. Normally it should be below 15. According to allopathy, diagnosis was acute congestive glaucoma. तो हम इसमें क्या करते हैं एलोपैथी में? We give diuretic drugs and we try to reduce the IOP. They tried everything, वो IOP कम नहीं हो रहा था. Then they decided to enucleate the eye. Enucleate में आँख निकाल देना, क्योंकि दोनों आँखों का जो आपसी रिलेशन रहता है, इट इज़ लाइक ट्विंस. जैसे एक ट्विन बीमार हो गया कि दूसरा बीमार होता है, एक आँख को कुछ हुआ कि दूसरा होता है. इसलिए एक आँख को कुछ हुआ तो वी ट्रीट बोथ आइज. तो द डॉक्टर्स डिसाइडेड टू रिमूव द आई. तो वहाँ का एक डॉक्टर, दैट टाइम आई वॉज कैंपिंग एट हैदराबाद, वन ऑफ द डॉक्टर्स केम टू मी कि डॉक्टर लोहिया ऐसा ऐसा एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा का केस एंड कैन यू डू समथिंग. मैंने उसको शुरू में बोला कि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा इज नॉट अ डायग्नोसिस, यू हैव गिवन अ ब्यूटीफुल नेम टू द कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट. Unless I see the patient and diagnose myself, and unless I find out the root cause, I can't tell you whether I can treat the patient or not. मेरा एक प्रिंसिपल है कि जब तक मैं पेशेंट को खुद चेक नहीं करूँगा, आई डोंट स्पीक. क्योंकि एलोपैथी में हम जो डायग्नोसिस कहते हैं वो डायग्नोसिस है ही नहीं ना. तो पेशेंट का वहाँ से डिस्चार्ज करके दे केम टू माई कैंप. व्हेन आई सॉ द पेशेंट, उसकी टंग देखी, द बॉर्डर्स ऑफ द टंग वेर इन्फ्लेम्ड एंड पर्पल इन कलर. आंखें तो लाल थी, उसका पल्स देखा, एंड माय डायग्नोसिस वाज एक्सेस फायर इन वुड एलिमेंट, लिवर एंड गॉल ब्लैडर. तो मैंने क्या किया कि उसकी पाँव के अंगूठे के पास लीवर 3 नाम का, लीवर 2 नाम का पॉइंट रहता है, विच इज सन पॉइंट ऑफ लीवर. आई टूक अ इंजेक्शन नीडल, परपेंडिकुलर डाला वहाँ, ऐसा घुमाया. A fountain of black blood came out. Black blood. Black blood is the pathological blood, dead blood in the language of acupuncture. उसके बाद ईयर अपेक्स से ब्लीड किया. ईयर अपेक्स इज द लीवर यांग पॉइंट, कि लीवर में हीट बढ़ती है, इसको हम प्रिक करके ब्लड निकालते हैं. वी गिव आउटलेट टू द हीट. बिलीव मी, विद इन 5 minutes उसके आँखों का कलर चेंज हो गया, उसका हेडेक एकदम बंद हो गया, एंड पेशेंट वॉज रेस्टलेस बिकेम नॉर्मल. तो ऑप्थोलॉजिकल जो डॉक्टर उसको लेके आया था, ही वॉज रेस्टलेस कि बीमारी आँख की है और अंगूठे को क्यों ट्रीट कर रहे हैं. उसको लगा शायद डॉक्टर लोहिया को समझा ही नहीं कि बीमारी क्या है. मैंने आँख को कुछ भी नहीं किया ना, कान को किया, पाँव के अंगूठे के पास किया, 5 मिनट में कलर चेंज हो गया. आई डिड नॉट डू रूटीन एक्यूपंक्चर इन दिस केस. 3 दिन रोज सवेरे शाम, 3 दिन रोज सवेरे शाम इतना ही किया, लीवर 2 से ब्लड निकालने का, ईयर अपेक्स से ब्लड निकालने का. ऑन 3rd डे उसका IOP was 12, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विच वॉज 59.6 केम डाउन टू 12. ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, उसकी आँख निकालने का प्रॉब्लम ही नहीं आया. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट केसेस. और इसमें डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो. एंड व्हेन आई से डायग्नोसिस, इट इज़ नॉट डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू एलोपैथी. So in acupuncture, if your knowledge is good, if you are good at diagnosis according to acupuncture, then the only limit is the sky. मेरे पास एक नागपुर का पेशेंट था, एक बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसके पीठ पे एक ट्यूमर था, मेनिंगोमाइलोसेल, विच इज़ बाय बर्थ. ही वॉज ऑपरेटेड इन नागपुर मेडिकल कॉलेज. और ऑपरेशन के बाद उसका यूरिन का कंट्रोल चले गया, urinary incontinence as a complication of the surgery.
डॉक्टर ने बोला कि अब लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेगा, ये यूरिन का कंट्रोल इसका गया, इसको कुछ नहीं कर सकते. दे केम टू बॉम्बे हॉस्पिटल, उन्होंने भी बोला कि कुछ नहीं कर सकते. देन दे केम टू मी. मैंने कहा इफ़ यू वांट आई कैन ट्राई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लोहिया, जिसको हम साइंस कहते हैं, इट इज़ ओनली 10%. नॉन साइंस इज 10%, अननोन साइंस इज 90%. हम साइंस की डेफिनेशन क्या है? आपको जो समझा उसको आपने साइंस बोला, आपको जो नहीं समझा वो क्या है? दिस अननोन साइंस, एंड अकॉर्डिंग टू मी 90% इज अननोन. मैंने बोला इफ़ यू वांट, मैं इसको रिजुविनेट करने की कोशिश करूंगा, गारंटी कुछ भी नहीं है. इफ़ यू वांट आई विल ट्राई. बिलीव मी, हमने ट्रीटमेंट चालू किया. चौथे दिन द फादर ऑफ द चाइल्ड वॉज इन माई कैबिन एट औरंगाबाद टॉकिंग टू मी. वो बच्चा दौड़ते हुए आया, दरवाजे को लात मार के अंदर घुसा, बाबा झाली की लग हुई, डैड हो गई, पेशाब हो गए, विदाउट एनी कैथेटर और विदाउट प्रेसिंग द एब्डोमेन. सो कई चीज़ें. एक औरंगाबाद के पास का पेशेंट था, एक्सीडेंट हो गया, 32 साल का आदमी, उसका एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी की T12 वर्टिब्रा के 6 टुकड़े हो गए, स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज हो गया, दोनों टांगों का पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, यूरिन का कंट्रोल गया, टट्टी का कंट्रोल गया. ऑपरेशन, उसको एडमिट किया एलोपैथी हॉस्पिटल में. उन्होंने बोला कि हम प्लेट लगा के वो 6 टुकड़े जो है उसको दोनों साइड से पेट लगा के स्क्रू मारेंगे, लेकिन तुम चल नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज है. पेशेंट कैंसल द ऑपरेशन. बोला मैं चलूँगा नहीं तो ऑपरेशन क्यों करूँ. देन ही केम टू मी. I saw his MRI. I told him कि according to known medical science, you cannot be cured. But I have got my special technique to rejuvenate spinal cord. If you want, I will try. We tried, and believe me, within a week, एक हफ्ते में 100% normal. This patient, I am chairman of Indian Academy. हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं. बाय नाउ हमारे 9 कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं. इन वन ऑफ आवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आई प्रेजेंटेड दिस पेशेंट. मैं लेक्चर देने के बजाय अगर पेशेंट खुद बोलता है कि मुझे ये था, मैं ऐसा हुआ, तो लोग उसको बिलीव ज़्यादा करेंगे, मुझे नहीं करेंगे. तो उसको दिखाया, उसके MRI दिखाया. मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स. दे ऑल्सो कुड नॉट बिलीव कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा, 6 टुकड़े हो गए, नहीं अच्छा कैसा होगा. चाइना के डॉक्टर ने उसको उडुबेट करने को लगाया, जहाँ फ्रैक्चर हुआ था जोर जोर से मारा, और फिर पूछा कैन यू लिफ्ट वेट. पेशेंट सेड कि आई एम अ ग्रॉसरी मर्चेंट, बिफोर एक्सीडेंट आई कुड टेक 70 किलो बैग ऑन माई बैग. नाउ आई कैन कैरी 120 kg बैग ऑन माई बैग आफ्टर दिस एक्सीडेंट. अब एक केस एज ए डॉक्टर ऑफ एलोपैथी मैं खुद भी नहीं बिलीव कर सकता, बिकॉज एलोपैथी में डेड इज डेड. तो एलोपैथी एक्यूपंक्चर में वही फ़र्क है, इसमें हम उसको सोया या बेहोश समझते हैं. अब ये कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर ने MRI किया था, वो डॉक्टर भी आया था. वो मुझे बोला कि इसका रिपीट MRI करेंगे कि क्या हुआ. मैंने पेशेंट को बोला कि वो बोलता है कि रिपीट MRI करना है. वो पेशंट उसको मराठी में बोला की तुला खाज असले तर तुझ्या पैशानी कर, मी खडूक देणार नाही. तुमको खुजली है तो तुम्हारे पैसे से मेरा MRI करो. आई विल नॉट गिव अ सिंगल रुपी बिकॉज यू वांट टू लर्न फ्रॉम माय केस. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. आई एम रनिंग, आई एम कैरिंग 120 kg ऑन बैक. व्हाई शुड आई स्पेंड फॉर MRI. यहाँ बॉम्बे में एक मेरे पास पेशेंट था जिसको कोरोनरी आर्टरी में 3 ब्लॉक थे. इसको हम ट्रिपल वेजल डिजीज़ कहते हैं एलोपैथी में, एंड इन एलोपैथी इसको बाईपास सर्जरी करते हैं. वो मेरे पास आया. मैंने उसको 10 मिनट समझाया कि यू गो फॉर बाईपास, अदरवाइज यू कैन डाई एट एनी टाइम. पेशेंट ने मेरे पाँव पकड़े, बोला सर मरना है तो तुम्हारे क्लिनिक में मरूंगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं करना. देन आई स्टार्टेड. मेरा टेक्निक है, आप सुनो, आपके काम की चीज़ है. Instead of going for angiography, what I do is I ask my patient to do fast walking. आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलने का, 3 किलोमीटर इन हाफ एन आवर, मिनिमम 2.5 किलोमीटर इन हाफ एन आवर. इसमें अगर आपको चेस्ट पेन नहीं होता है, अनईजी नहीं लगता है, एक्सेस स्वेटिंग नहीं होती है, या कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, योर हार्ट इज 100% नॉर्मल, यू डोंट हैव टू गो फॉर एंजियोग्राफी. दिस डॉक्टर लोहिया's टेक्निक.
मेरे कई टेक्निक ऐसे हैं कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आई वांट टू सेव मनी ऑफ द पेशेंट। तो ये पेशेंट को मैंने बोला कि तुम कल सवेरे वॉक करो मॉर्निंग, और कितनी देर के बाद तुमको चेस्ट में पेन होता है यू स्टॉप इमीडिएटली। मैंने उसको गोलियां लिख के दी सॉर्बिट्रेट कि तुमको तकलीफ हुई स्टॉप वॉकिंग, एक गोली जीभ के नीचे रखो ताकि तुम सेफ रहोगे, और डेली बट कंटिन्यू वॉकिंग एंड डेली नोट डाउन द टाइम कि कितनी देर के बाद तकलीफ हुई। जैसे हमने ट्रीटमेंट चालू किया उसका टाइम बढ़ते गया। आफ्टर 6 months I asked him, now how long you can walk without a problem? He said, I can walk for at least 1 hour, that is more than 6 kilometers, then I have to stop. मैंने बोला why do you have to stop? Where is the pain? वो बोला सर घुटने में बहुत दर्द होता है। आई वॉज ट्रीटिंग यू फॉर चेस्ट पेन, हार्ट प्रॉब्लम। 1 घंटा चलने के बाद हार्ट को कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता, 1 घंटे के बाद घुटने दुखते हैं इसलिए। सो what I want to emphasize is that don't think that acupuncture is only for pain and paralysis. मेरे पास पूरे दुनिया से all incurable लोग देख आते हैं। मैं ये नहीं दावा करता कि आई क्योर एवरीबडी, बट एटलीस्ट जिन केसेस में एलोपैथी में हम कोशिश भी नहीं कर सकते, उन केसेस में हम एक्यूपंक्चर में कोशिश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड और डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर इज करेक्ट. So I won't take much of your time. Thank you, Dr. Kumar, and all of you for listening to me carefully. Thank you very much. By the way, कई लोगों ने मुझे कार्ड मांगे थे. I don't carry cards. I will give my telephone number, WhatsApp number, 98220 58501. I have 5 clinics at Mumbai, 2 at Delhi, many places. Next week I am at 4-5 दिन मैं मुंबई में हूँ. So if you have any problem, you can contact me on WhatsApp. Thank you very much. All the number of all the speakers will be there on the WhatsApp group. We have made one WhatsApp group today itself only, and today you must have received a message for coming here in time. So in that group we will put mobile number of all the speakers. वो तुम्हारे इसमें भी है ना, कॉन्फ्रेंस मैगजीन में भी है मेरा आर्टिकल और नंबर. In the magazine, the souvenir which we have published here, in that also the number is there. My article and number is there in souvenir also. Yeah. Please, sir. Fifteen days back, there was a conference at Hyderabad. I was chief guest. और वहाँ के मिनिस्टर आने वाले थे. I was told कि continue your lecture till the minister comes, and I had to continue for 1.5 hours. तो मैडम को जाके आना है, तब तक 5 मिनट आपसे. जिनको कुछ पूछना है बाद में चाय पानी के टाइम बात करेंगे. अब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अदर्स टाइम, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, नॉट ओनली एक्यूपंक्चर, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एक्यूपंक्चर. मैंने ट्यूमर के बारे में ये भी आपको बोल रहा था कि एलोपैथी में वी डोंट नो द कॉज ऑफ ट्यूमर. हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं. इन एलोपैथी OMA, ओमा मीन्स ट्यूमर. तो जहाँ का ट्यूमर है उसके आगे हम ओमा लिख देते हैं. जैसे मेनिंगो को हुआ मेनिंजियोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा. ओमा जहाँ भी आएगा दैट मीन्स ट्यूमर. एड वन वेरी इंटरेस्टिंग केस. नासिक का एक डॉक्टर शौचे उसका नाम, उसको he had a small tumor on his vocal cord. He lost his voice. In allopathy, the diagnosis was singer's nodule, because this type of nodule on vocal cord is more common in singers. I have treated many interested singers for this problem. उसका पूरा आवाज़ चले गया. They went to the ENT specialist. He did scopy
उसने पिक्चर ड्रॉ करके दिया कि यहाँ नोड्यूल है, दिस इज द कॉज, द सर्जन एडवाइज सर्जरी। उसने बोला कि सर्जरी से इसको निकाल देंगे ताकि आगे कैंसर का रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा आवाज़ आने वाला नहीं है। देन दे केम टू मी। अब मैं एलोपैथी का डॉक्टर, उस समय आई वॉज फ्रेश इन एक्यूपंक्चर। I could never believe कि this nodule can be treated with acupuncture because it is a mechanical problem. तो मैंने उसको वाइफ भी डॉक्टर है, उसको समझाया कि इसको ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, सिंगल नोड्यूल हो जाएगा कैसा, इट इज़ मैकेनिकल। मेरे पाँव पकड़ के रोने लगे जोर जोर से, सर वी हैव कम टू यू एज द लास्ट होप, डू सम मिरेकल। मतलब मिरेकल करना मेरे हाथ में नहीं, होना ऊपर वाले के हाथ में है। जस्ट because they forced me, I didn't have even 1% hope. Because they forced me, with intuition, मैं कई बार क्या करता हूँ, नीडल लेता हूँ, जहाँ हाथ जाएगा वहाँ लगाता हूँ, and many times it works. Intuition, seventh sense. उस पेशेंट को मैंने 3 नीडल लगाए, I remember, one was Zuzanli, second was Hegu, and third was throat point in ear. 3 ही नीडल लगाया उसको। आई डिड नॉट हैव इवन 1% होप। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर शौचे केम टू मी एंड ही वॉज टॉकिंग, बात कर रहा था वो, पहले दिन बात नहीं कर सकता था, एक ही सीटिंग दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज टॉकिंग। आई वॉज शॉक्ड, आई कुड नॉट बिलीव। सो आई आस्क्ड हिज वाइफ कि तुम इसको ENT वाले के पास लेके जाओ वापस दोबारा। He was taken to the same ENT specialist जिसने उसका पहले स्कोपी किया था। स्कोपी करने के बाद the ENT specialist was in shock कि नोड्यूल गया कहाँ। बोला गड़े शपथ काल होता आज नहीं, मैं क्या करो। उसने लिख के दिया कि there is no nodule. I was conducting classes at नासिक, मेरा क्लास चालू था, क्लास was about to end। क्लास के बाद मुझे पेशेंट देखना था, बाहर पेशेंट की बहुत भीड़ थी, लंबी चौड़ी क्यू। क्लास वॉज अबाउट टू एंड एंड डॉक्टर शौचे एंटर्ड माय क्लास, ऐसा पेपर लेके, रिपोर्ट लेके, सर सर डॉक्टर म्हणतात गळ्याची गाठ गेली, डॉक्टर बोलता है कि गले की गाठ गई। ऐसा बोलते ही वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वॉज MBBS डॉक्टर स्टूड अप, गई गेली कुठे गेली, गेली कुठे गेली। आई वॉज ऑल्सो इन शॉक कि गई तो कहाँ गए। दरवाजे में जो पेशेंट खड़े थे, वन ऑफ द पेशेंट, इलिटरेट पेशेंट, अ मैन विथ टर्बन। रूटीनली हमको क्या लगता है कि जो पढ़े लिखे डिग्री वो बहुत होशियार लोग हैं और जो अनपढ़े वो बेवकूफ़ है, दैट इज अ रूटीन थिंकिंग, बट दैट इज 100% रॉन्ग। मेनी टाइम्स सो कॉल्ड इलिटरेट पीपल आर मोर क्लेवर एंड मोर लॉजिकल देन अस। द मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द डोर, पेशेंट मैन विथ टर्बन, ही एंटर्ड द क्लास। और वो डॉक्टर को बोला, मूर्खासारखं काही काय विचारता सराला, जितून आली तिथे गेली, बेवकूफ जैसा कुछ भी क्या पूछते हैं सर को, जहाँ से आई वहाँ गई। दैट सेंटेंस इज स्टिल कार्व्ड ऑन माई ब्रेन। उसको मैं टीचर मानता हूँ मेरा। टीचर का मतलब ये नहीं कि जो आपको पढ़ाता है क्लास में वही टीचर है, जिससे आप सीखते हो वो आपका टीचर है। दैट इलिटरेट मैन इज टीचर, क्योंकि यहाँ कार्व्ड है सेंटेंस, जितून आली तिथे गेली। Then I started thinking कि in allopathy ओमा means tumor, but we don't know cause of tumor. ट्यूमर कहाँ से आया? We have not imported from sun or moon. फिर आया कहाँ से? इसका मतलब in body something which was normal became abnormal, something which was physiological became pathological, and the end result is this tumor. Simple logic. Then I started working on it. एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि बाद में मैंने कई ट्यूमर्स एक्यूपंक्चर से अच्छे किए। मेरा इस पे रिसर्च पेपर है, द कॉज ऑफ ट्यूमर अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर एंड एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। ओके, नाउ मैडम मूस हैज़ कम, सो आई रिक्वेस्ट मैडम मूस, आई वॉज आस्क्ड टू फिल अप दिस गैप ऑफ 5 minutes, सो आई रिक्वेस्ट मैडम मूस टू कम ऑन द डायस एंड स्टार्ट विथ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जिसको कुछ पूछना है अब लंच के टाइम में यू कैन मीट मी पर्सनली एंड यू कैन आस्क मी। थैंक यू।